آج اویسی ہاسپٹل میں 50% سے زائد بیمار لوگ جو اپنے بیماری کو دور کرنے کی امید کو لے کر آتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور میرے پیر تک پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکبر صاحب بہت لوگ بہت باتیں کرے لیکن کچھ نہیں کرے، لیکن ہم کو بار بار یہ تمہارا چہرہ بتا کر ڈرایا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا کہ تم مسلمان کے لیڈر ہو، تم فرقہ پرست ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان کے ہی لیڈر نہیں، تم فرقہ پرست نہیں، تم جو کام کر رہے ہو بیماروں کے علاج کا ہمارا کوئی آدمی نہیں کرا جو کام تم کر رہے ہو، کہہ کے پیر پڑ کے جاتے ہیں۔ ارے آج یہ کام ہمارا ہے، ہمارے اداروں میں۔ ارے 1962 میں جس کے پاس 8,000 روپے نہیں تھے، آج اس کے پاس 4,000 کروڑ کے اثاثے ہیں، تو اس جماعت کے چلائے جانے والے اداروں میں 8,000 سے زائد لوگ کو روزگار مل رہا ہے۔ میڈیکل کالج اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں 4,500 لوگ برسر روزگار ہیں، 4,500۔ انجینئرنگ کالج میں الگ، MBA میں الگ، MCA میں الگ، فزیوتھراپی میں الگ، نرسنگ میں الگ، فارمیسی میں الگ، آرکیٹیکچرل کالج میں الگ۔ اگر یہ سب لے لیں تو 8,000۔ ارے غور کرو، جاہلوں کی جماعت کہتے تھے، رکشے والوں کی جماعت کہتے تھے، بنڈی والے پنچر جوڑنے والوں کی جماعت کہتے تھے۔ ارے دیکھ لو پڑھے لکھے جاہلوں، تم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم جاہلوں نے وہ کام کیا۔ 8,000 گھروں کو ہم نے روزگار دیا۔ کتنی بڑی انڈسٹری میں تبدیل ہو گئی۔ صرف ماہانہ تنخواہ 4 کروڑ ہے، ماہانہ تنخواہ۔ آپ کو معلوم میڈیکل کالج اویسی و اسرا کا سالانہ بجٹ 200 کروڑ کا ہے، 200 کروڑ۔ تنخواہیں، تعمیر، اکوپمنٹ۔ کل ہی میں نے بجٹ بنایا صدر محترم کی منظوری کے لیے، 183 کروڑ روپے کا بجٹ بنا۔ ارے غور کرو، الزام لگانے والوں تم نے کیا کیا؟ اخبارات سیاہ ہوتے رہیں، احیاء مجلس سے لے کر آج تک بھی سیاہ ہوتی رہی تنقید، الزام۔ ارے تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا دیا ملت کو، قوم کو؟ کچھ نہیں، صرف انتشار دیتے ہیں قوم ملت کو، ملت کو بانٹنے کے سامان دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرے۔ اس 62 برس کی تاریخ میں دشمنوں نے ہم کو ختم کرنے کی منصوبہ بنائی، منصوبہ سازی کی، سازشیں کی۔ جب وہ ناکام ہوئے تو ہماری صفوں سے بھی بعض لوگوں کو چن کر ہم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک مرتبہ نہیں، تاریخ مجلس کی کہ کئی مرتبہ غداری ہوئی، لیکن صدر مجلس چاہے وہ فخر ملت علیہ رحمہ ہو یا سالار ملت ہو، اس غداری کی پرواہ نہیں کی۔ فخر ملت کے دور میں بھی غداری ہوئی تھی، مجھے یاد ہے سالار نے مجھ سے کہا تھا، میاں میں نے اس غداری کے بعد دارالسلام میں صدور و معتمدین کے
जलसे में कहा था, अगर ये गद्दारी कर ले तो कोई बात नहीं, वो गद्दारी कर ले तो कोई बात नहीं। फख्र मिल्लत ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो इसको एमएलए बना के बता सकता हूं। मतलब दारुस्सलाम में फख्र मिल्लत की खिदमत करने वाले खादिम के तरफ, दारुस्सलाम के चपरासी के तरफ अपनी उंगली बताकर बताई थी कि अगर मैं चाहूं तो इसको एमएलए बनाकर बता सकता हूं। अरे गौर करो, हुई हैं गद्दारियां, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जिस दिन से कायम हुई है, न सिर्फ अपने दुश्मनों को शिकस्त देती गई, बल्कि गद्दारों को भी मसलते हुए अपने मुकाम पे ना सिर्फ खड़ी है, बल्कि आज मजलिस बुलंद होती जा रही है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। खुदारा हालात को समझो, हालात किस तरफ जा रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है या फिर मुसलमानों की बात करता। मैं एक रहनुमा होने की हैसियत से, एक मुंतखब नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरी ये अखलाकी, जमहूरी व दस्तूरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पहले काम करूं तो उसका काम करूं जो मजलूम है, सबसे पहले उसका काम करूं जो पिछड़ा हुआ है, सबसे पहले उसका काम करूं जो सबसे पीछे है, सबसे पहले उसका काम करूं जो सबसे पसमानदा है। जब मैं पसमानदगी को दूर करूंगा, पिछड़ेपन की कमजोरी को दूर करूंगा, एक मजलूम को इंसाफ दिलाऊंगा, तो जब ही जमहूरियत कामयाब होगी। क्या यह गलत बात है? और क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा? गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो, जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं, इन सारे रिपोर्ट्स ने इस बात की निशानदेही की है कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पसमानदा, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो मैं पिछड़े मुसलमान की आवाज बनता हूं, पसमानदा मुसलमान की आवाज बनता हूं, मजलूम मुसलमान की आवाज बनता हूं, इसलिए कि उस पिछड़े हुए पसमानदा को आगे लाकर दूसरों के बराबर खड़ाऊं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में अपना रोल भी पेश करूं। कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जबरदस्त खेला होगा। फिर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूती मानी जाएगी और एक मजबूत पार्टी बन करके उभरेगी। इस वक्त जो है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पांचों विधायक सीमांचल में जो वादा किए थे लोगों को चुनाव के वक्त कि यहाँ पर बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं और जब मानसून आने के बाद खासतौर पर बाढ़ के दिनों में यहाँ पर जो घनी नदियाँ हैं वो उफान पर आ जाती है, लोगों के घर कट जाते हैं। इसी को निजात दिलाने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सीमांचल को इस बार जो है बाढ़ से बचाया जाए और बाढ़ निरोधक कार्य को शुरू किया जाए। इस वक्त चूंकि बाढ़ का वक्त है, फिलहाल अभी से अगर शुरू किया जाए तो कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए बड़ा प्रयास और कदम होगा। फिलहाल जो है इस तरह का सियासी माहौल फिर गर्म है। उधर खबरें यह आ रही है कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचाधामन विधायक इजहार आसफी ने जो चुनाव में वादा किए थे वो भी पूरा कर दिए हैं। उन्होंने कहा था कि कोचाधामन विधानसभा में 30 पंचायत है और हर 10 पंचायत में एक एम्बुलेंस फ्री में दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक इजहार आसफी ने 2 एम्बुलेंस और दिया है
पहले से एक एम्बुलेंस यहाँ पर जो 10 पंचायतों के लिए दिया गया था, उसके बाद 2 एम्बुलेंसों का चुनाव के वक्त उन्होंने वादा किया था, उनको उन्होंने पूरा कर दिया है। अब 30 पंचायत में 3 फ्री एम्बुलेंस MIM का हो रहा है। और साथ ही साथ उधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना महामारी को रोकथाम करने के लिए 3 एम्बुलेंस यहाँ पर इन जिलों में, खासतौर पर सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में दिया। उधर खबरें आ रही है कि पूर्णिया जिला के MIM के जो जिला सचिव हैं डॉक्टर अबू सायम, उन्होंने भी एक फ्री एम्बुलेंस वहां पर सुविधा किया है जो अमोर विधानसभा में आते हैं। कुल में मिलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीमांचल में 7 एम्बुलेंस है जो इस वक्त दौड़ रही है। और साथ ही साथ यहाँ के जो रोगी है, खासतौर पर गांव के जो पेशेंट है, उनको ले जाने में काफ़ी मदद कर रहा है। एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक लगातार अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए लगे हैं, तो दूसरी तरफ अभी सियासी माहौल गर्म लग रहा है। इस वक्त मजे की बात यह है कि अगर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चे आम हैं, कहीं ना कहीं अगर सरकार बिगड़ने और सरकार को बनाने का खेला शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर किंग मेकर साबित हो सकता है। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों का हर डिमांड जो है वो पूरा हो सकता है। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक किसी भी दल के साथ बिकने वाले नहीं हैं और ना ही उन्हें खरीद सकता है। लेकिन आपको बताते चले कि वो जो क्षेत्र के विकास के लिए और ख़ासतौर पर बिहार के सीमांचल से जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके लिए वो डिमांड करेंगे और सरकार से स्पेशल पैकेज के लिए शुरू से ही मांग कर रहे हैं और फिलहाल ये अपनी बात को रख सकते हैं। कहीं ना कहीं किंग मेकर वाली बात अगर चली तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अगर किंग मेकर बना तो यकीनन है कि सीमांचल सहित पूरे बिहार का ज़बरदस्त विकास होगा। और साथ ही साथ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। फिलहाल जो है जो खबरें हम आएगी वो आपको सीधा अपडेट हम देने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार में इस वक्त काफ़ी जो है सियासी माहौल गर्म हो चुका है। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायकों से किसी तरह का अभी बयान जारी नहीं किया है। और साथ ही साथ इस वक्त मजलिस के विधायक लगातार अवाम के मसाइल को हल को लेकर के पटना में पहुंच चुके हैं। सदर कलीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नबी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद पार्लियामेंट को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। आप सबकी जानिब से अजीम तर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर और उसके साथ ही साथ मैं शहर हैदराबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उन सब का जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, बुजुर्गों का, नौजवानों का, पर्दानशीन माँ और बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने फिर से अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन